Hello everyone, I'm Dr. Swasti and today we will talking about some basic terminology. So let's talk about tooth structure. Each tooth has crown and root portion. Crown is covered with the enamel. Enamel form a protective covering over the entire surface of crown. The root portion is covered with cementum and the crown and the root join at the cemento-enamel junction. CEJ, and this junction is also called as cervical line. Now, the main bulk of the tooth is composed of yellow discoloration which is called as dentine. This is a pulp. So, the pulp present in the crown is called coronal pulp and the pulp which is present in the root is called as radicular pulp. The pulp tissue has blood and nerves which supply to the tooth. Enamel, dentine, cementum are made up of hard tissue and the pulp is made up of soft tissue. क्यों? क्योंकि पल्प क्या है? ब्लड और नर्व सप्लाई है. नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट रूट्स. So in my previous video, I have talking about anteriors, incisors, canine are anteriors, premolar and molars are posteriors. So the anteriors मतलब incisor, center incisor, lateral incisor, canine have single root. Maxillary incisors or mandible incisors both have single rooted teeth. Now the premolars and molars. So mandibular molar have two root, but the maxillary molar have first molar especially have three rooted. Now the premolar. So first premolar maxillary, the first maxillary premolar have two root, while second maxillary premolar and mandibular first premolar and second premolar have single rooted. This is important for your viva also. Now, the root portion of the tooth is fixed in the bony process of the jaw. Each tooth, it is held in its position. मतलब रूट और जो पूरा टूथ है वो किसी मतलब बोनी प्रोसेस से जो है सराउंडेड रहता है. सो द पोर्शन विच हेल्ड द टूथ इज कॉल्ड एज एल्वुलर प्रोसेस. द बोन ऑफ द टूथ सॉकेट, जहाँ पे दांत रहता है उसको हम बोलते हैं एल्वुलर प्रोसेस. Some basic terminology which you should know about. So now we will talking about landmarks. We will divide it into elevations, depression and ridges. So in elevation part, cusp, tubercle, cingulum, and the ridge is based on their name, like marginal ridge. So distal marginal ridge, mesial marginal ridge, triangular ridges, transverse ridge and oblique ridge. And some depression we will talking about later: fossa, sulcus, developmental groove, supplemental groove, pit and lobe. So now we will talking about cusp. So what is cusp? A cusp is a elevation on the crown portion of the tooth. आप अपने दांत को भी हाथ लगा के देख सकते हैं कि जो एलिवेटेड पार्ट होगा, मतलब जो ओक्लूजल सरफेस है आपका, उसमें जो सबसे एलिवेटेड पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं कस्प. आप देख रहे होंगे किसी में 4 कस्प है, किसी में 2 कस्प है. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बक्कल क्या होता है, लिंगुअल क्या होता है, पैलेटल क्या होता है, मीजियल क्या होता है, डिस्टल क्या होता है. प्रीमोलर हैव बक्कल कस्प एंड लिंगुअल कस्प, and while maxillary has buccal cusp and palatal cusp, while molar have stobuccal cusp, linguobuccal cusp, mesiobuccal cusp, mesiolingual cusp. According to their location, it is divided into this part. Tubercle. What is tubercle? Tubercle is smaller elevation on some portion of the crown. It is the extra formation of enamel. I have this tubercle on my canine tooth. This is very small elevation of your on your crown portion, which is your extra formation of your enamel. Cingulum. So what is cingulum? Cingulum जो होता है anterior tooth पे होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंटीरियर टूथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है. तो ये एलिवेटेड पार्ट जो होता है ये सिंगुलम होता है.
ठीक है। सिंगुलम पार्ट जो होता है बल्क ऑफ द सर्वाइकल थर्ड ऑफ द लिंगुअल सरफेस, ये लिंगुअल सरफेस पे होता है। और सर्वाइकल थर्ड मतलब कि टीथ को हम इंसाइजर थर्ड, मिडल थर्ड एंड सर्वाइकल थर्ड में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो बल्क ऑफ द सर्वाइकल थर्ड पार्ट है वो ये सिंगुलम ही फॉर्म करता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिजेस के बारे में। रिज क्या होते हैं? ये एक एलिवेशन ही पार्ट होता है बट लीनियर एलिवेशन ऑन द टूथ सरफेस होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लोकेशन इनके नाम होते हैं। एज आई टोल्ड अबाउट, मार्जिनल रिजेस are those rounded borders of the enamels that form mesial marginal ridge and distal marginal ridge. If it is present on the mesial side तो हम क्या बोलेंगे? आपको पता है कि mesial है तो mesial side है तो mesial marginal ridge, distal side पे है टूथ के तो distal marginal ridge. Triangular ridges descend from the tip of the cusp. आपको पता है cusp क्या होता है? cusp के टिप से, और cusp किस पे होते हैं? मोलर्स एंड प्री मोलर्स पे। सो the triangular ridges descend from the tip of the cusp of the molar and premolars towards the center part of the occlusal surface. तो हम occlusal surface की ही बात कर रहे हैं। तो cusp टिप से लेकर जो सेंट्रल पार्ट तक ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर रिजेस। इसका नेम इसलिए पड़ा है क्योंकि स्लोप ऑफ ईच साइड ऑफ द रिज इंक्लाइंड है। आप देख सकते हैं कि ये इंक्लाइन जा रहा है। अगर हम पूरे cusp का पार्ट देखें तो ये इंक्लाइंड है, इसलिए इसको हम ट्रायंगुलर रिज बोल देते हैं। तो नाउ ट्रांसवर्स रिज। तो ट्रांसवर्स रिज क्या होता है? व्हेन ट्रायंगुलर रिजेस, आपको पता है कि अगर हम टिप ऑफ द कस्प से सेंट्रल पार्ट तक आ रहे हैं तो उसे हम ट्रायंगुलर रिज बोलते हैं। तो बक्कल ट्रायंगुलर रिज, लिंगुअल ट्रायंगुलर रिज। तो जब बक्कल ट्रायंगुलर रिज एंड लिंगुअल ट्रायंगुलर रिज जो है मर्ज होती है, द टू रिजेस टुगेदर फॉर्म अ लॉन्गर रिज इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स रिज। मतलब कि जो दोनों ट्रायंगुलर रिजेस का यूनियन जहाँ होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स रिज। अब हम पढ़ते हैं ऑब्लिक रिज। ऑब्लिक रिज का होता है जो आपका ट्रांसवर्स रिज है, जो आपका ट्रायंगुलर रिज है, ट्रांसवर्स रिज है, ये आपको मोलर्स में दिखते हैं। बट ऑब्लिक रिज जो है वो स्पेशली आपको मैक्सिलरी मोलर्स में दिखता है, ऑक्लूजल सरफेस पे दिखता है। और ऑब्लिक रिज क्या होती है? डायगनली होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि वन रिज ऑन द मीजियोलिंगुअल। मीजियोलिंगुअल मतलब मीजियल साइड है और लिंगुअल साइड है। लिंगुअल मतलब टंग की साइड है। तो मीजियोलिंगुअल कस्प जॉइनिंग द ट्रायंगुलर रिज ऑफ द डिस्टोबक्कल रिज। कि ये कहाँ जा रहा है? कि मीजियोलिंगुअल से डिस्टोबक्कल जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ऑब्लिक रिज क्या होती है? सिंपली अगर हम बोलें तो डिस्टोबक्कल कस्प से जो मीजियोलिंगुअल कस्प तक जो ट्रायंगुलर रिज बन रही है उसका रियूनियन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक रिज। ये ऑब्लिक रिज आपको आगे डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेगी, इसलिए आप उसको याद कर लीजिए कि DB डिस्टोबक्कल एंड मीजियोलिंगुअल ML। ऑब्लिक रिज को हम याद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये वाइवा का भी क्वेश्चन आता है और इसमें आप आगे पढ़ेंगे टूथ का डिफ्रेंशिएशन। तो DB जैसे अगर हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? DOB। तो डेट ऑफ बर्थ तो ऐसा भी याद कर लीजिए, डिस्टोबक्कल ऑब्लिक रिज, ठीक है। तो ऑब्लिक रिज कैसे फॉर्म्ड हो रही है? डिस्टोबक्कल एंड मीजियोलिंगुअल। जहाँ आपको डिस्टोबक्कल याद होगा उसका अपोजिट आपको मीजियोलिंगुअल याद रह जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द डिप्रेशंस। सो डिप्रेशन में क्या आता है? फोसा। फोसा क्या होता है? कि फोसा इज एन इरेगुलर डिप्रेशन। इरेगुलर डिप्रेशन है और कॉन्केविटी है और डिप्रेशन है। फोसा भी 3 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। लिंगुअल फोसा, सेंट्रल फोसा, ट्रायंगुलर फोसा। सो लिंगुअल फोसा जैसे कि नाम बता रहा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लिंगुअल सरफेस ऑफ इंसाइजर्स। कहाँ पे? लिंगुअल सरफेस ऑफ इंसाइजर्स। देन सेंट्रल फोसा आर लोकेटेड ऑन द ओक्लूजल सरफेस ऑफ मोलर्स। मोलर्स के ओक्लूजल सरफेस पे सेंट्रल फोसा होगा। कैसे? कि जो हमने रिजेस अभी तक पढ़े हैं उन रिजेस को कन्वर्ज कर दो। अगर हम कन्वर्जेंस ऑफ द रिजेस जहाँ पे टर्मिनेट एट द सेंटर पॉइंट इन द बॉटम ऑफ द डिप्रेशन, जहाँ पे वो रिजेस आके टर्मिनेट हो रही है, सारी रिजेस आके टर्मिनेट हो रही हैं, वहाँ पे एक सेंट्रल फोसा बन जाता है, एक जंक्शन बन जाता है उन ग्रूव्स का, उन फोसा का। तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोसा। नाउ ट्रायंगुलर फोसा आर फाउंड ऑन मोलर्स एंड प्रीमोलर्स ऑन द ओक्लूजल सरफेस। सो ट्रायंगुलर है तो अगर आप मोलर आप देख सकते हैं तो मोलर की यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं ये क्या है? डिस्टल मार्जिनल रिज एंड मीजल मार्जिनल रिज। तो यहाँ पे जो ये फोसा बन रहा है मतलब यहाँ पे एक कॉन्केविटी बन जाती है, तो इसको हम बोलते हैं मीजल ट्रायंगुलर फोसा
and distal triangular fossa. Sulcus. Sulcus is long depression on the surface of the tooth. सल्कस क्या होता है कि लॉन्ग डिप्रेशन है तो डिप्रेशन बट लॉन्ग है. फोसा इरेगुलर डिप्रेशन था, सल्कस लॉन्ग डिप्रेशन है. विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द रिज एंड कस्प. मतलब जो रिजेस आपने पढ़े हैं, ट्रायंगुलर रिज, ट्रांसफर रिज, ये सब रिजेस एंड कस्प का एक इंक्लाइंड होता है जो कि मीट करता है एक एंगल पे, उसको हम बोलते हैं सल्कस. ग्रूव्स क्या होते हैं? ग्रूव जो होते हैं एक लीनियर चैनल होते हैं वो, जैसे कि डेवलपमेंटल ग्रूव, सप्लीमेंटल ग्रूव. ये क्या होता है कि डेवलपमेंटल ग्रूव इज अ शैलो ग्रूव होता है और एक लाइन होती है बिटवीन द प्राइमरी पार्ट ऑफ द क्राउन और टूथ. कि डेवलपमेंटल ग्रूव जो है आपको क्राउन और रूट में देखने को मिलेगा, एक शैलो ग्रूव होता है. ठीक है, और ये सल्कस से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि सल्कस जो होता है वो लॉन्ग डिप्रेशन होता है, बट ये जो है शैलो ग्रूव है. सप्लीमेंटल ग्रूव क्या होता है? शैलो लीनियर डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द टूथ. मतलब ये लीनियर डिप्रेशन होता है. ठीक है, जैसे कि बक्कल और बक्कल डेवलपमेंटल ग्रूव, लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ. अब नाउ टॉकिंग अबाउट पिट्स. पिट्स क्या होता है कि स्मॉल पिन पॉइंट डिप्रेशन. पिट्स क्या होता है? स्मॉल पिन पॉइंट डिप्रेशन एट द जंक्शन ऑफ डेवलपमेंटल ग्रूव्स. पिट्स क्या होता है कि ये टर्मिनल पिन पॉइंट डिप्रेशन, एक पिन पॉइंट डिप्रेशन होता है डेवलपमेंटल ग्रूव्स में, जैसे कि सेंट्रल पिट. नाउ टॉकिंग अबाउट द लोब. इट इज़ अ प्राइमरी सेक्शन ऑफ फॉर्मेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ क्राउन. क्राउन के डेवलपमेंट में प्राइमरी सेक्शन फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोब्स बोलते हैं. नाउ मैमिलियन क्या होता है? मैमिलियन जो होता है वो इंसाइजर थर्ड पे होता है. इंसाइजर टीथ, एंटीरियर्स में जो इंसाइजर टीथ होते हैं उनके इंसाइजर थर्ड पे, जैसे कि बताया था कि इंसाइजर थर्ड, मिडल थर्ड, सर्वाइकल थर्ड, 3 पार्ट में हम जो है क्राउन को डिवाइड कर देते हैं. तो इंसाइजर थर्ड पे 3 राउंडेड प्रोट्यूबरेंस होती है, उसे हम मैमिलियंस बोलते हैं, जो कि प्राइमरी टीथ में हमें देखने को मिलता है. तो लोब कितने, कौन से दांत में लोब कितने होते हैं? सो ऑल एंटीरियर टीथ एंड प्रीमोलर के बारे में हम देखते हैं कि ऑल एंटीरियर टीथ, या फिर वो मैंडिबल हो या मैक्सिलरी हो, उनमें लिंगुअल साइड पे एक सिंगुलम होता है. जैसे कि हमने एलिवेशन में सबसे 3rd नंबर पे पढ़ा था कि सिंगुलम होता है लिंगुअल साइड पे, तो एक सिंगुलम हो गया. और लोब्स, नंबर ऑफ लोब्स जो लेबियल साइड है, मतलब फेशियल साइड या लेबियल साइड, उसको हम 3 में डिवाइड कर देते हैं. लेबियल साइड मैंने आपको बताया था कि लेबियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिप्स की साइड होता है, इसलिए लेबियल साइड हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. तो नंबर ऑफ लोब्स ऑन द लेबियल साइड इज 3 एंड 1 जो लिंगुअल साइड पे प्रेजेंट है, उस टोटल कितना हो गया? 4. तो ऑल एंटीरियर टीथ, चाहे वो एंटीरियर मैंडिबल हो चाहे वो मैक्सिलरी हो, सब नंबर ऑफ लोब्स 4 होते हैं. अब आता है 2 कस्प प्रीमोलर. 2 कस्प प्रीमोलर है तो इसका लिंगुअल साइड पे 1 होगा. ठीक है, क्या सिंगुलम या फिर लिंगुअल कस्प. लिंगुअल कस्प जो है वो लिंगुअल साइड पे 1 ही होगा. ठीक है, तो 1 वो हो गया, और नंबर ऑफ लोब्स कितने हो गए फेशियल साइड पे? 3, तो फिर वही 4 हो गया. अब ये कह रहे 3 कस्प प्रीमोलर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिंगुअल साइड पे 2 कस्प हैं, तो लिंगुअल पे कितने गिने जाएंगे? 2 कस्प एंड 3 लोब्स जो फेशियल साइड पे होंगे, तो टोटल 5 हो गया. तो आप बस ये याद रखना है कि इंटीरियर्स में 4 होते हैं और 2 कस्प प्रीमोलर पे, जो कि मोस्टली होते हैं कस्प 2 ही होते हैं, उसमें 4 होता है. ठीक है, अब मोलर्स पे देखते हैं. 3 कस्प मोलर, तो 3 कस्प मोलर है तो 3 लोब्स होंगे. 4 कस्प मोलर है तो 4 लोब होंगे. अगर 5 कस्प मोलर हैं तो 5 लोब्स होंगे. ठीक है, इंक्लूडिंग 5th जो कस्प होता है वो मेनली सेरेब्रली कस्प होता है, जो कि 5th कस्प होता है. ठीक है, मोलर्स में बहुत सिंपल है, आपको जितने कस्प होंगे उतने ही लोब्स होंगे. और एंटीरियर्स में भी सिंपल है कि लेबियल साइड पे आपको 3 रखना है और सिंगुलम पे, लिंगुअल साइड पे आपको 1 रखना है. तो ईजी है, आपको याद हो जाएगा, ये डायग्राम में आप. सो नेक्स्ट वीडियो में हम शेप ऑफ द टूथ और ज्योमेट्री ऑफ द टूथ देखेंगे, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं.